میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اب نکل بھی آؤ باتھ روم سے، اس کے بعد مجھے بھی نہانا ہے۔ میرے کمرے کا نل خراب ہو گیا ہے۔ میں اپنے کمرے کے باتھ روم میں نہا رہی تھی کہ امی دروازہ بجاتے ہوئے آوازیں لگانے لگی۔ میں اندر سے جواب تو نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ میرے لمبے بال گھٹنوں تک آتے تھے، جنہیں شیمپو کرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا، اور یہ میرے لیے بڑا ہی مشکل تھا۔ جب میں 10 منٹ کے اندر نہا کے باہر آئی تو امی میرے کمرے میں صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ارے تم نے تو اتنا ٹائم لگا دیا، اب تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا نہانے کو۔ اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہو تم؟ امی کی بات سن کے میں نے سر پکڑ لیا۔ امی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے کہ آپ کو میرے اتنے بڑے بال نظر نہیں آ رہے۔ انہیں شیمپو کنڈیشنر کرنے میں پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے، میں خود تھک گئی ہوں۔ میرے بازو اتنے تھک گئے ہیں کہ ہاتھ اوپر کر کے ان میں جان ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے بالوں پہ ٹاول لپیٹتے ہوئے کہا تو امی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں تو خود رکھے ہوئے ہیں تم نے اتنے بال، میری جوانی میں بھی اتنے ہی لمبے بال تھے، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، اس لیے میں نے کٹوا دیے تھے۔ اگر چاہو تو تم بھی سیلون جا کے کٹوا لو۔ امی کی بات سن کے میں نے امی کو آنکھیں دکھائی تو امی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے اپنے لمبے بال کتنے پسند ہیں، اور میں تو 1 انچ کٹوانے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی کہ اسی وقت ہی میرا موبائل تھر تھر آیا تو میں نے فوراً سے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ وہاں پہ سعدیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، جو میرے لیے سب کچھ تھی، میری کزن، میری دوست، میری دنیا۔ سعدیہ سے شروع ہو کے سعدیہ پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ میری خالہ زاد بہن تھی، لیکن اصل میں ہمارا رشتہ بہنوں سے بھی کہیں آگے کا تھا۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ میں پورے 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم اب تک پہنچی کیوں نہیں ہو؟ اگر تمہارے یہی طور طریقے رہے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی تمہارے بغیر۔ پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بلایا نہیں۔ اس سے اتنی لمبی تقریر کی تھی کہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ سعدیہ ریلیکس ہو جاؤ، پہلے لائٹ نہیں تھی اور میں نے نہانا تھا، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ اب بس 10 منٹ میں تیار ہو کے نکل رہی ہوں، امید ہے کہ ڈرائیور انکل گھر پہ ہی ہوں گے۔ میں بس 10 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے اس کی بات نہ سنی اور کال کٹ کر دی۔ میں جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی، مجھے آج اس کی طرف جانا تھا اور وہاں سے ہم نے اپنی ایک دوست کے ہاں جانا تھا جس کے کچھ ہی دنوں میں شادی ہونے والی تھی۔ دراصل ہم اس کی شادی کی تیاریوں میں ہیلپ کروا رہے تھے۔ اسے ہم دونوں کی پسند بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، اس لیے ہم مل کر ہی شاپنگ وغیرہ کرتے تھے، مگر آج ہم نے شاپنگ نہیں کرنی تھی۔ آج تو ہم ویسے اس کے گھر پہ اس کی کچھ خریدی ہوئی چیزیں دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب میں سعدیہ کے گھر پہ پہنچی تو خالہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، مگر سعدیہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خالہ کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے کب سے میسیجز پہ میسیجز اور کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی، اب خود لگتا ہے تیار نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تو خالہ مسکراتے ہوئے بولی کہ بیٹا وہ تو نہا رہی ہے، ابھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو جانے میں بہت ٹائم ہے۔ خالہ نے انجانے میں اپنی بیٹی کا پول کھول دیا تھا۔ میں اسی وقت دوڑتی ہوئی سعدیہ کے کمرے میں گئی اور باتھ روم کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اب تم نکلو ذرا، میں تمہیں دیکھتی ہوں، مجھے اتنی جلدی بلا لیا اور خود اب باتھ روم میں گھس رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نکلی تو وہ نہا کے آئی تھی۔ اس کے شولڈر کٹ بال مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ 1 منٹ کے لیے تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی شولڈر تک کروا لوں، لیکن یہ صرف میں ہی سوچ سکتی تھی، مجھ میں اتنی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ سعدیہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے آدھے گھنٹے پہلے مجھے کال کر کے کہا کہ تم تیار ہو کے میرا انتظار کر رہی ہو، اور اب خود تم ابھی نہا کے نکلی ہو۔ میں نے کہا تو وہ دانت نکالتے ہوئے بولی کہ تمہارا پتہ ہے نا مجھے تم کتنا ٹائم لگاتی ہو، اسی لیے میں نے باتھ روم جانے سے پہلے ہی تمہیں کال کر دی تھی۔ اب دیکھو تم بھی ریڈی ہو، میں بھی ریڈی ہوں، بس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بالوں میں کنگھا کرنے لگی۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا، کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت مجھے جلد تیار نہ کرواتی تو شاید اب تک میں اپنے گھر پہ ہی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں زوئی کے گھر کے لیے نکل گئے۔ اس کا گھر سعدیہ کے گھر کے قریب ہی تھا، مگر پھر بھی ہم گاڑی میں گئے تھے۔ گاڑی سعدیہ نے ڈرائیو کی تھی کیونکہ اسے ڈرائیونگ آتی تھی، مگر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ میرا شوق تھا کہ میں ڈرائیونگ سیکھوں، مگر ہمارے گھر پہ ڈرائیور موجود تھا، اس لیے کبھی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زوئی کی ملازمہ ہمیں اس کے کمرے میں لے گئی، مگر زوئی کمرے میں نہیں بالکنی میں کھڑی تھی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا اور وہ موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہم چپکے سے اس کی باتیں سننے لگے۔ عمران بس کر دے، میری دوستیں آنے والی ہیں، وہ کیا کہیں گی کہ میں شادی سے پہلے ہی آپ سے باتیں کرنے لگ گئی ہوں۔ جیسے ہی زوئی کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ہم دونوں کا کہا نکل گیا۔
हमारी हंसी की आवाज़ सुन के उसने फौरन हम दोनों की तरफ देखा और फिर जल्दी जल्दी मोबाइल बंद करने लगी। भले ही हम तीनों अच्छी दोस्तें थीं, मगर ज़ोई ने आज तक हमें ये कभी भी नहीं बताया था कि वो अपने कज़न से बात करती है, जो उसका मंगेतर भी था। वाह भई छुपी रुस्तम, आज तक हमें बताया नहीं कि तुम इमरान भाई से बात करती हो और यहाँ खड़ी हमारा ही कह रही थी कि हम ना देख लें। मैंने तंज़ करते हुए कहा तो वो दोनों हँसने लगी थी। अब हम ज़ोई के कमरे में बैठे थे। वो अलमारी से कुछ चीज़ें निकाल के हमें दिखा रही थी। अभी हम वहीं पे बैठे थे कि दरवाज़े पे दस्तक हुई और हमारी इजाज़त देने से पहले ही वहाँ पे एक लंबा तड़ंगा लड़का आया और आते साथ ही ज़ोई के हाथ में कुछ थमाने लगा। मैंने तो चेहरा एक तरफ कर लिया था। ना जाने कौन था। ज़ोई के दोनों भाइयों को तो मैं जानती थी। ये वो तो नहीं था। ना जाने कौन था। मुझे तो गुस्सा आ रहा था कि बिना इजाज़त के वो अंदर घुस आया। थोड़ी देर बाद जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो लड़का जा चुका था और ज़ोई के हाथ में एक पार्सल था। यार, ये कौन बदतमीज़ था जिसने नाक करने के बाद इजाज़त का इंतज़ार ही नहीं किया। सादिया ने कहा तो ज़ोई बताने लगी कि यार ये मेरे चचा का बेटा है। साथ वाला घर इन्हीं का है। उसी के बड़े भाई से तो मेरी शादी हो रही है। इमरान ने पार्सल भिजवाया है। पता नहीं अब इसमें क्या होगा। ये कह के ज़ोई हंसी खुशी पार्सल खोलने लगी। मगर अब तक मेरे जहन में उस लंबे नौजवान का चेहरा घूम रहा था। मैंने उसका चेहरा बस एक लम्हे के लिए देखा, मगर उसके चेहरे की छाप मेरी आंखों में पड़ गई। वैसे तो वो ठीक ठाक था, बस मुझे उसकी एक ही बात बुरी लगी कि वो बिना इजाज़त के अंदर घुसा चला आया। ज़ोई ने जब वो पार्सल खोला तो अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। वो कोई नेकलेस था। ये देख के ज़ोई की चीख निकल गई, वो भी खुशी के मारे। यार ये तो मैंने ऑनलाइन पसंद किया था, मगर उस वक़्त मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ से 6 महीने पहले की बात है। मैंने इमरान से ऐसी बातों-बातों में इसका ज़िक्र किया, तो उसे ये लेकर भिजवा भी दिया। यार वाक़ई में जब मोहब्बत करने वाला शौहर बनने वाला हो, तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। ज़ोई हँसते हुए कह रही थी और हम दोनों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर बाद मुलाज़िमा हमें बुलाने के लिए आई कि आके दोपहर का खाना खा लें। हम सब नीचे पहुँच गए, मगर वहाँ पे जाके मेरा पारा हाई हो गया। ज़ोई की अम्मी के साथ वही लड़का बैठा था और मज़े से खाना खा रहा था। ज़ोई, यार मैंने यहाँ पे खाना नहीं खाना, बस मैंने खाना खाना ही नहीं है। हम घर चलते हैं, तुम आराम से खाना खाओ। जैसे ही मैंने ये कहा तो ज़ोई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यार कुछ नहीं होता, वो मेरा कज़न है, बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पे तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। इसके बाद तुम दोनों ने मेरे साथ मार्केट चलना है। मैंने अपने शूज़ देने हैं। इसके बाद मैं तुम लोगों को घर जाने की इजाज़त दूँगी। ज़ोई ने मेरा हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया। सादिया तो पहले ही बैठ गई थी। उसे सबसे कोई सरोकार नहीं था। वो ऐसी चीज़ों पर तवज्जो ही नहीं देती थी। मगर मैं क्या करती? मेरी तवज्जो खुद ब खुद उन चीज़ों की तरफ जाती थी। मैंने ब्लैक कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था। नहाने की वजह से मैंने बालों को खुला छोड़ दिया था, जो अब मेरी कमर पे नाक की तरह लहरा रहे थे। खुश्क बाल और भी ज़्यादा घने महसूस हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और शायद दूसरों को भी ऐसा ही लग रहा था। अचानक से मैंने प्लेट पर से नज़र उठा के ऊपर देखा तो वो लड़का मुझे ही देख रहा था। इस चीज़ पे भी मुझे धचका लगा कि ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं और ना ही हमारी ऐसी कोई बात है, तो क्यों वो बिना वजह मुझे देखे जा रहा है। मगर उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और वहां से उठ के ड्राइंग रूम में जा बैठी। मैंने जोई और सादिया से कह दिया था, खाना ख़त्म करने के बाद तुम दोनों वहीं पे आ जाना। मैं उस लड़के से जान छुड़ाने के लिए ड्राइंग रूम में आ बैठी थी, जो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही था, मगर सोफ़ों का रुख दूसरी तरफ था, इसलिए मेरी पीठ उन लोगों की तरफ थी। अचानक से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने फ़ौरन से पीछे मुड़ के देखा, तो वो लड़का भी खाना ख़त्म करके वहीं पे आ रहा था। फिर वो मेरे वाले सोफ़े पे बड़ा जमान हो गया। सोफ़ा बड़ा था, मैं एक कोने पे बैठी थी और वो दूसरे कोने पे। "ओह मिस्टर, किसकी इजाज़त से आप यहाँ बैठे हैं? क्या आपको नज़र नहीं आता कि यहाँ पे एक लड़की बैठी है?" मैंने उठते हुए कहा, मगर मेरी आवाज़ मद्धम थी, क्योंकि मैं अपना तमाशा नहीं लगाना चाहती थी और मुझे लग रहा था कि मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो इस चीज़ को ज़्यादा बुरा नहीं समझा जाता था। मोहतरमा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये मेरे चचा जान का घर है और यहाँ मैं कहीं पे भी किसी की इजाज़त के बगैर बैठ सकता हूँ। आप कौन है जो यहाँ सुबह से मंडला रही हैं? उस शख्स ने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, तो मेरी आंखों में खून उतर आया। ओह प्लीज़, ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं। मैं जोई की दोस्त हूँ। शायद आपने यहाँ पे मुझे पहली मर्तबा देखा है, मगर यहाँ पे हम आते जाते रहते हैं। और वैसे भी आप जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कहीं खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे आ गए। मैंने एक झटके से बालों को पीछे करते हुए कहा, तो वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगा। वो अब कुछ बोल नहीं रहा था। ना जाने उसे क्या हो गया था। वो बस मेरे चेहरे को और फिर मेरे बालों को देखे जा रहा था।
میں نے उसके करीब जाकर उसके चेहरे के सामने 2 बार चुटकी बजाई तो वो होशो हवास की दुनिया में वापस आ गया। आप अपनी गलत फहमी अपने आप तक ही रखें। शायद आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा गुमान हो गया है और वो भी गलत। वो दोबारा से ज़हर उगलने लगा। उस वक्त मेरा पारा आसमान को छू रहा था। उसी वक्त जोई हम दोनों की बातें सुन के वहीं पे आ गई थी। जोई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। सादिया भी वहीं मौजूद थी। यार, वो क्या सोचेगा? वो तो इमरान से कहेगा कि मेरी दोस्त कितनी लड़ाका है। जोई मुझे समझाने लगी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि वो अपने कज़न को समझाने के बजाय मुझे समझा रही है। उससे अपने कज़न से कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे ही लंबे लंबे भाषण दिए जा रही है। जोई, मेरे ख्याल में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, क्योंकि तुम एक लड़की हो और ऊपर से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम नहीं जानती इन लड़कों को। बस कहीं भी लड़की देखी नहीं कि डोरे डालने पहुंच जाते हैं। बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं दोबारा तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने ये कहा और अपना बैग उठा के जाने लगी तो सादिया और जोई दोनों ने मुझे पकड़ लिया। वो जानती थी कि मैं गुस्से की तेज हूँ और अगर एक मर्तबा कमिटमेंट करके यहाँ से चली गई तो वाकई में फिर मैं जोई की शादी पे भी नहीं आने वाली थी। इसलिए उन दोनों ने मुझे एक एक बाजू से जकड़ लिया। वो दोनों मुझे सोफे पे बैठाए हुए थी और मैं कह रही थी कि मैंने वहां से जाना है। लेकिन आखिरकार मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी थी, क्योंकि आंटी वहीं पे आ गई थी। वो कह रही थी कि मैंने बासिल को डांटा है, वो चला गया है यहाँ से। बेटा, तुम परेशान ना हो, आइंदा वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। आंटी की बात सुन के मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन दिल अब भी नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे बैठूं। अब फिर हमने प्लान बनाया कि आज नहीं, बल्कि 1-2 दिन में मार्केट जाएंगे। जोई भी मान कही और फिर थोड़ी देर बाद मैं और सादिया उसके घर से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मेरा दिमाग अब भी आग बगोला हो रहा था। मुझे उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था जिसका नाम आंटी ने बासिल बताया। नाम तो बड़ा अच्छा था और शक्ल सूरत भी ठीक ठाक थी, मगर उसके तौर तरीके मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे। एक अनजान लड़की के साथ उसने इतना झगड़ा किया और यही सोच सोच के मेरा खून खौल रहा था। शॉवर लेने के बाद जब मैं दोबारा कमरे में वापस आई तो मेरा गुस्सा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका था। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। मैंने बाल गीले नहीं किए थे, बस ऐसे ही गले से नीचे तक शॉवर ले लिया था। मेरी सारी गर्मी यहीं पे ही खत्म हो गई। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने आप को देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गलती मेरी भी है, अकेली उस लड़के की नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपना जहन दूसरे कामों में लगाने लगी। मैं नोट्स बनाने लगी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जोई की शादी से पहले पहले मैं अपना सारा काम खत्म कर लूं। जोई तो वैसे ही पढ़ाई को खैर बात कह चुकी थी और सादिया मुझसे 1 साल सीनियर थी, इसीलिए पढ़ाई का सारा प्रेशर मुझे अकेली पर ही था। और फिर 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। आखिरकार आज वो दिन था जब हम दोबारा से जोई के घर में मौजूद थे, मगर वो लड़का बासिल मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया था। जोई के घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी और साथ वाले घर से भी शोर शराबा आ रहा था, क्योंकि वही घर तो जोई का ससुराल था। इमरान और बासिल दोनों भाई थे और जोई के कजन थे। आज का दिन बड़ा ही अच्छा गुजरा था। न जाने क्यों मैं अनजाने में बासिल के बारे में सोच रही थी। दिल चाह रहा था कि एक मर्तबा उससे मिलके कह दूं कि सॉरी, उस दिन गलती मेरी भी थी। लेकिन वो मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दिया और मेरी ईगो को ये मंजूर नहीं था कि मैं जोई से इस बात का जिक्र करूं कि वो मेरा पैगाम उस तक पहुंच जाए। अभी हम उसके घर से निकलने वाले थे कि गेट पे हमें बासिल मिल गया। उसके हाथ में 2 टोकरे थे और उन्हें लेकर वो अंदर की तरफ आ रहा था। इसलिए हम अंदर ही रुक गए ताकि वो आसानी से आ सके। वो अंदर आ चुका था। उसने दोनों टोकरे फर्श पे रखे और हमें देखने लगा और फिर सलाम करके वो टोकरे लेके अंदर चला गया। उसे कोई बदतमीजी न की और ना ही मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखा। अचानक से सादिया को याद आया कि वो तो अपना पर्स अंदर ही भूल आई, लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जाके ले आती हूँ। ना जाने मैंने ऐसा क्यों कहा, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। मैं दोबारा से अंदर गई तो वो आंटी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जोई के कमरे की तरफ जा रही थी ताकि सादिया का पर्स ला सकूं कि पीछे से आंटी की आवाज़ आई। वो कह रही थी, बेटा जोई को भी नीचे ले आना, बासिल उसके लिए सामान लाया है। आंटी की बात सुन के मैंने हाँ में सर हिलाया और ऊपर पहुंच गई। वहां जाके जब मैंने पर्स उठाने के बाद जोई को ये पैगाम दिया तो वो कहने लगी कि हाँ, वो मेरी बरी की कुछ चीजें लाया होगा। तुम दोबारा से अंदर आओ, देख के जाना। फिर कपड़े टेलर के पास चले जाएंगे तो तुम शिकायत करोगी कि तुमने देखे नहीं। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल ना जाने क्यों खुश होने लगा। मैं बाहर गई और सादिया को बुला के दोबारा से अंदर आ गई। अब हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। बासिल एक तरफ बैठा अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उसने निगाह उठा के मुझे नहीं देखा।
वो ना जाने आज क्यों इतना शरीफ बन गया था, या फिर शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा था। यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। ज़ोई के कपड़े वाकई बहुत अच्छे थे। हमने माशाल्लाह कहा और फिर वहाँ से उठने लगे तो मुलाजमा भाग के आई और कहने लगी कि बीबी जी, आपके ड्राइवर 2 मिनट पहले चले गए हैं। उन्हें शायद आपके बाबा ने बुला लिया है। वो कह रहे थे कि आप कैब लेके आ जाना या फिर 1-2 घंटे तक इंतज़ार करें। जब हमने ये सुना तो सादिया का तो मुंह बन गया, क्योंकि उसने घर पे कोई बहुत ज़रूरी काम करना था। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सादिया कहने लगी ठीक है, हम कैब लेके चले जाते हैं। वो मोबाइल पे कैब बुक करने लगी तो उसी वक्त आंटी ने कहा कि तुम लोगों को बासिल छोड़ देगा, उसे भी उसी तरफ जाना है किसी काम से। जैसे ही आंटी ने कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, हम उस लड़के के साथ कैसे जा सकते थे। लेकिन सादिया कहने लगी हाँ ठीक है, आप हमें छोड़ दें। मुझे तो बड़ी जल्दी घर पहुंचना है और मुझे ये फिक्र थी कि जब सादिया अपने घर उतर जाएगी तो आगे का रास्ता मैं उस लड़के के साथ अकेली कैसे तय करूंगी। लेकिन मुझे ये करना पड़ा और मैं 10 मिनट बाद सादिया वाकई में अपने घर पे उतर गई और मैं पिछली सीट पे अकेली रह गई। आधे रास्ते मैंने बासिल से गाड़ी रोक दी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो धोखा दे रहा है, वो मेरे साथ गलत करेगा, मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो रुख पीछे करके बैठ गया। अब जब उससे सॉरी के लफ्ज़ को बोला तो मुझे एक झटका लगा। मुझसे माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, आपके शहर में इतना खो गया था कि किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी। उसे बड़ी आसानी से इतने भारी जुमले अदा कर दिए जो मेरे हलक में फंसने लगे। ओके कोई बात नहीं, अब चले, मुझे घर पहुँचना है। मैंने नज़रें झुका के बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए तो उसने फ़ौरन से गाड़ी चला दी और फिर 10 मिनट के अंदर मैं अभी अपने घर पे थी। मैंने उसे अंदर आने का भी नहीं कहा। ना जाने क्यों मैं ये मैनर्स भूलती जा रही थी, या शायद उसके सामने ही मैं ये सब भूलने लगी थी। वो बेचारा चला गया। शायद उसे इंतज़ार था कि मैं उसे चाय के लिए रोकूंगी, लेकिन मैंने नहीं रोका था। जैसे ही मैं अंदर गई तो अम्मी कहने लगी कि ये कौन था जो तुम्हें छोड़ने आया था। वो इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। मैंने उन्हें बताया कि जोई का कज़न था तो वो खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैंने कभी उनसे कोई झूठ नहीं बोला था। जोई की शादी में अब सिर्फ 12-13 दिन रह गए थे। मुझे उसकी शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मैंने अपने बालों की और भी केयर करना शुरू कर दी। हालाँकि मेरे बाल घने, लंबे और चमकीले थे। किसी केयर की ज़रूरत तो नहीं थी, मगर मुझे अपने बाल बहुत प्यारे थे। इसीलिए मैं उनकी बहुत हिफाज़त करती थी और मेरी दोस्तें और कज़न समझती थी कि इस हिफाज़त की वजह से ही मेरे बाल इतने अच्छे हैं। मगर वो नहीं जानती थी कि ये विरासत में मुझे मिले हैं। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार मेहंदी से 2 रोज़ पहले जोई ने सादिया और मुझे, हम दोनों को बुला लिया। शाम का वक्त था जब हम उसके घर पे पहुंचे तो दोनों घर सजे हुए थे। लाइटिंग लगाई गई थी और साथ वाले घर से तो म्यूजिक बजने की आवाज़ें भी आ रही थी, क्योंकि वो दुल्हा वाला घर था। ज़ोई की कुछ और दोस्तें भी वहाँ पे आई हुई थी। दरअसल आज वो ब्राइडल शॉवर कर रही थी। ज़ोई ने कहा कि अचानक प्लान बना तो मैंने तुम दोनों को भी बुला लिया। अगले दिन तो मेहंदी है और तो कोई टाइम बचा ही नहीं। हम दोनों तो अच्छे से तैयार होके भी नहीं गई थी। मैं तो वैसे ही घर पे भी अच्छे कपड़ों में बैठी थी और आते वक्त मैंने जूता भी चेंज कर लिया, इसलिए मैं तो बिल्कुल मुतमईन थी। मगर सादिया जोई पे गुस्सा कर रही थी कि बता देती, अगर तुम्हारी इतनी सारी दोस्तें आई हुई थी तो मैं भी कोई तैयारी ही कर लेती। मगर वो कह रही थी कि तुम्हें किससे देखना है। दोस्तों में नोक झोंक चलने लगी और मैं जोई के कमरे की खिड़की खोल के बाहर का नज़ारा देखने लगी, जहाँ से दूसरे घर का लॉन बड़े अच्छे से नजर आता था। अचानक मेरी निगाह एक लड़के पे पड़ी जिससे ब्लैक शलवार कमीज के ऊपर ऑफ वाइट कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी। जब मैंने बड़े गौर से उसे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि बासिल था। वो बहुत अच्छा लग रहा था, मगर अगले लम्हे मेरी नज़र एक और लड़के पर पड़ी जो मुझे ही देख रहा था, वो भी लॉन के कोने में बैठकर, और फिर वहीं से बैठ के वो बुरे बुरे इशारे करने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, ना जाने वो कौन था। मैंने तो उसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो उनका कोई रिलेटिव था या फिर कोई दोस्त। मैंने उसी वक्त खिड़की बंद की और वहां पे बैठ गई। मेरा मूड खराब हो गया। सब दोस्तें केक काट रही थी तो खामोशी से मैं भी पीछे जाके खड़ी हो गई, मगर मेरा मूड अब तक ठीक नहीं हुआ था। केक कट करने के बाद हमने केक खाया और फिर वहीं पे बैठ के जोई को छेड़ने लगे। अब रात के 10:30 बजे मैंने सादिया से कहा कि अब हमें चलना चाहिए। तो वो कहने लगी ठीक है, तुम ड्राइवर को कॉल कर दो, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी नहीं लाई, मैं तो खुद तुम्हारे साथ आई हूँ। जैसे उससे ये कहा तो मैंने ड्राइवर अंकल को कॉल की, मगर वो तो कॉल ही पिक नहीं कर रहे थे। शायद वो अपने घर चले गए। बाबा को मैंने खुद कॉल नहीं की।
वो जानती थी कि वो टैबलेट्स लेके सो गए होंगे। अब दोबारा से हमारे जाने का मसला बन गया। सभी लड़कियां एक एक करके जाने लगी थी। अब फिर जब आंटी और जोई ने हमें परेशान देखा तो वो कहने लगी कि हम किसी लड़के को बुला देते हैं, क्योंकि जोई के दोनों भाई तो कामों में इतने मसरूफ थे कि वो तो हमें कहीं पे ही दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन आंटी ने कहा कि मैं उसके चचा की बेटी को या फिर किसी और कज़न को बुला देती हूँ, वो तुम्हें आराम से घर छोड़ देगा। फिर जब हम नीचे पहुंचे तो बासिल खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। आंटी ने उससे ही कहा था, क्योंकि उसने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। आज मैं पिछली सीट पे बैठने लगी तो वो कहने लगा कि एक लड़की आगे आके बैठ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले टायरों का कोई मसला है। सादिया पिछली सीट पे बड़ा जमान हो गई थी, इसलिए मुझे ही आगे जाना पड़ा। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। अब मैं कुछ देर बाद सादिया अपने घर पे उतर गई, लेकिन मेरा घर अभी तक नहीं आया था। बासिल कोई बात नहीं कर रहा था और ना ही मैंने कोई बात की। अब फिर सारा रास्ता यूं ही खामोशी रही। अब फिर उसने मुझे मेरे घर के गेट के सामने ड्रॉप कर दिया। जब मैं उतर के जाने लगी तो उसने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया। ना जाने किसने उसे मेरा नाम बताया था। वो कह रहा था कि आपके यहाँ चाय वगैरह पे रोकने का रवाज नहीं। उसे मुस्कुराते हुए कहा तो मेरी भी हंसी निकल गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आपको किस तरह अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो खुद भी आपको नहीं जानती। मैंने सीधी सी बात कही तो वो भी शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा कि हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यह कह के वो खामोश हो गया। तो मैंने भी कह दिया कि क्या कहना चाहते हैं आप। तो वो कहने लगा, अगर आप चाहें तो इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। बासिल नाम है मेरा, बासिल खान। ये कह के वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर वो वहां से चला गया और मैं वही गेट पर उसे देखती रह गई। उसका यह अंदाज मेरे दिल में खुभने लगा था। वो चला गया, मैं अब भी खड़ी थी, हालांकि उसे गए हुए 2-4 मिनट गुजर चुके थे। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अंदर पहुंच गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं उसी के बारे में सोचती रही और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। मेहंदी का फंक्शन आया और हवा की तरह गुजर भी गया। आज बारात का फंक्शन था। मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना था। सादिया और मेरा लहंगा सेम था, बस कलर डिफरेंट था। उसका कलर लाइट ऑरेंज था और मेरा लाइट पिंक। जब हम दोनों हॉल में पहुंची तो हर किसी की नजरें हमारी तरफ ठहर गई। मैंने बालों को मुकम्मल तौर पे खुला छोड़ रखा था। मैंने ये सुन रखा था कि बालों पे जन्नात आशिक हो जाते हैं, मगर मैंने कभी इस बात के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। मुझे ये बात बड़ी ही अजीब और स्टूपिड लगती थी। मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती थी। सादिया स्टेज तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक मैं एक टेबल के करीब खड़ी अपनी सैंडल ठीक कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टूटने वाली है। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि किसी की नज़रें मुझे देख रही हैं। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे एक झटका लगा, उलझन सी होने लगी, लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सैंडल ठीक की और आराम आराम से चलती हुई स्टेज तक पहुंच गई, जहाँ पे जोई बिल्कुल तैयार बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर बारीक कपड़े का घूंघट था, जहाँ से उसका चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था। वो अच्छी तो लग रही थी, मगर मेरा दिल था कि उसे घूंघट के अंदर से देखूं। लेकिन वो कह रही थी कि सबसे पहले इमरान मुझे देखेगा। इस बात पे भी हम उसे खूब छेड़ रही थी। मैं लड़कियों के साथ बैठी हंसती मुस्कुराती बातें कर रही थी कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि फिर से कोई देख रहा है। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर कोई नहीं था। मैं स्टेज पे बैठ बैठ के थक चुकी थी। सादिया तो वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही हॉल का एक राउंड लगा के आती हूँ। वहां पे और भी बहुत सारी लड़कियां थी, जिनमें ज्यादातर जोई और हम सबकी कॉलेज फ्रेंड्स थी। मैं उनसे मिलने लगी। जो भी मुझे देखता दंग रह जाता। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। लड़कियां तो लड़कियां, आंटियां भी मेरे पास आके कह रही थी कि बड़ी प्यारी बच्ची है। अगर मेरे साथ आज अम्मी होती तो वो बहुत खुश होती, मगर वो तो आई नहीं थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं अकेली ही आई। उन्होंने तो जोई की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया। जोई ने तो हमें वलीमे पे भी बुला रखा था, लेकिन मेरा जाने का इरादा नहीं था, क्योंकि हमारा कोई तुक नहीं बनता था वलीमे पे जाने का। अभी मैं हॉल के बीचों बीच ही खड़ी थी कि अचानक से हॉल की रोशनी बंद हो गई। ना जाने क्या हुआ था। हर तरफ से शोर मच गया कि लाइट चली गई है। मुझे अचानक से महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है, और फिर जब लाइट आई तो मैंने खुद को एक अनजान जगह पे पाया। वो एक कमरा था जिसमें लाइट जल रही थी और मुझे रस्सियों से कुर्सी पे जकड़ा गया था। मैंने घड़ी पे वक्त देखा तो मेरे तोते उड़ गए। 3 घंटे गुजर गए थे। 3 घंटे पहले मैं हॉल में थी और अब मैं यहाँ इस जगह के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे कुछ खास याद नहीं था। मुझे बस ऐसा याद आ रहा था कि उस वक्त जब लाइट गई तो कोई मुझसे टकराया और किसी का हाथ मेरे चेहरे तक आया था। ना जाने क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बेहोश किया था। इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।
अभी मैं यही सोच रही थी कि धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर आता दिखाई दिया। मेरी आंखें रोशनी की वजह से चुंधिया गई थी। मैंने आंखों को मसलने के बाद उस लड़के को देखा तो मेरा पारा हाई हो गया। ये तो वही लड़का था जिसे मैंने उस दिन बासिल के घर के लॉन में देखा था, जो मुझे कंधे इशारे कर रहा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने हिचकियों के साथ रोते हुए कहा तो वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मेरे बालों को छूने लगा। जाने मन, तुम्हें क्या पता कि कब से मेरी तुम पे नजर है। तमाम फंक्शन में मेरी नज़र सिर्फ तुम पे थी, मगर आज मुझसे कंट्रोल ना हुआ, इसलिए फार्म हाउस में ले आया हूँ। बस आज मेरा दिल भर दो, इसके बाद चली जाना। जैसे ही उसने ये कहा तो मैंने महसूस किया कि मेरा खून खुश्क हो रहा है। अगर मेरे हाथ बंधे हुए ना होते तो अब मेरी उंगलियां उसके चेहरे पे छाप छोड़ चुकी होती। बकवास बंद करो अपनी और जाने दो मुझे यहाँ से। तुम जानते नहीं मेरे बाबा को। मैंने उसे धमकी दी तो वो कह कहा लगा के हंसने लगा और कहने लगा कि तुम भी नहीं जानती मुझे। डीएसपी का बेटा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, चाहे तुम जिससे भी बुला लो। डीएसपी का जिक्र सुनते ही मेरे जहन में बिजली कूद गई। एक मर्तबा जोई ने बातों बातों में हमें बताया था कि उसके दूर के अंकल डीएसपी हैं और उनका एक ही इकलौता बेटा है जो बड़ा शरीर है। मैं समझ गई कि ये वही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैंने अब रोना धोना शुरू कर दिया। मैं अब गुस्से के बजाय उसकी मिन्नतें करने लगी, मगर वो मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था। फिर वो मुड़ा और दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ आने लगा। वो अब दरवाज़ा बंद करके आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वो मेरे फिर से करीब आ गया। मैं चिल्लाने लगी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, क्या कसूर है मेरा? तो वो कहने लगा कि यही कसूर है तुम्हारा। उसे मेरे बालों को अपने हाथों में पकड़ लिया। मुझे दर्द महसूस हो रहा था। वो कह रहा था यही तुम्हारा कसूर है, तुम्हारे ये खूबसूरत घने लंबे बाल, मैं इन पे फिदा हो चुका हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और तुम भी। ये कहते हुए वो मुझ पे झुकने लगा था। एक मर्तबा फिर से धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुला। लॉक तोड़कर बासिल अंदर आ गया। उसके दिमाग की रगें तनी हुई थी और उसने दोनों मुट्ठियां भींच रखी थी। आधे साथ ही वो उस लड़के को मारने लगा था। ना जाने उसे कैसे पता चला था कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं उसे देख के मजीद रोने लगी। उस लड़के को अदमुआ करने के बाद वो मेरे करीब आया और मेरे हाथों की रस्सियां खोल दी और मुझे वहां से खड़ा करके बाहर लाने लगा। 10 मिनट के अंदर ही वो मुझे अपनी गाड़ी तक ला चुका था। मैं रोए जा रही थी। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची, मगर मैं कुछ नहीं बता रही थी। और फिर उसने मुझे बताया कि कुछ देर पहले ही मैं उसे कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। रुखसती होने वाली थी और फिर उसने बड़ी मुश्किल से जोई से मेरा नंबर लिया। मुझे कॉल की तो मेरी लोकेशन यहाँ की आ रही थी। कॉल तो मैं पिक नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और मेरे लहंगे के साथ वाली पोटली में रखा था। उस लड़के को शायद इस बात की समझ नहीं थी कि मोबाइल मेरे पास हो सकता है। उसी मोबाइल की वजह से ही बासिल मुझ तक पहुंचा था। उसे मेरी लोकेशन ट्रेस कर ली थी, मगर मैं अब भी उसे नहीं बता पाई कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची। मुझे कुछ पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं बासिल को बता देती। उसने मुझे मेरे घर छोड़ा तो आज पहली मर्तबा मैंने उससे कहा कि आप अंदर आ जाएं, मैं आपको अम्मी अब्बू से मिलवाती हूँ। अम्मी अब्बू भी मेरी वजह से परेशान हो रहे थे। उन्हें तो ये नहीं पता था कि मुझे अगवा किया गया है। वो तो यही समझ रहे थे कि मुझे शादी में ही देर हो गई है। मगर वो कहने लगे कि नहीं, आज देर हो गई है, अब सीधा रिश्ता लेके आऊँगा। जैसे ही उसे ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा। इस बारे में तो मैंने तो इतना सीरियस होकर सोचा ही नहीं था। फिर वो वहाँ से चला गया और मैं भी अपने घर आ गई। अम्मी अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया था, बस इतना ही कहा कि देर हो गई और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने उसी वक्त ही अपनी पोटली बैग से मोबाइल निकाला और सादिया को मैसेज करने लगी। उसे सारी हकीकत बताई तो वो कहने लगी कि यार, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, मगर तो मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा पता नहीं, शायद घर चली गई हो। हम मैसेज में बात कर रहे थे क्योंकि इतनी रात को हम कॉल में बात नहीं किया करते थे। अब फिर अगला दिन भी आ गया। सुबह सवेरे मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज मौसूल हुआ कि आज मेरी तरफ से भी आपको मेरे भाई के वलीमे में इनविटेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अम्मी अब्बू को भी साथ लाएंगी ताकि वो मुझसे मिल सके। मैं समझ गई कि ये बासिल है और फिर मैंने अम्मी अब्बू से सब सच कह दिया। रात को मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर अब मैं खुद रिलैक्स थी तो मैं आसानी से बात कर सकती थी। अब्बू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और कह रहे थे कि मैं उस लड़के से ज़रूर मिलूंगा जिसने मेरी बेटी की इज्जत और जान बचाई है। और फिर शाम को हम वलीमे के फंक्शन में पहुंच गए। अब्बू बासिल से मिलकर बहुत खुश हुए और अम्मी भी खुश थी। वो दूसरा लड़का वहां नहीं था, हालांकि उसकी फैमिली का फंक्शन था। बासिल ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो लड़का दूर का कज़न था।
बस उसे वार्निंग दे दी थी कि अगर आइंदा उसने मेरी तरफ आँख उठा के भी देखा तो उसे छोड़ेगा नहीं। मौका मिलते ही बासिल मेरे पास आ गया और फिर मेरी मुट्ठी में कुछ रखा तो मैं हैरान रह गई। जब मैंने खोल के देखा तो वो एक अंगूठी थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मुझे प्रपोज़ कर गया था, वो भी खामोशी से, और फिर वक़्त यूँ ही गुज़रता गया। पूरे 1 हफ़्ते बाद एक दिन जब मैं बालकनी में खड़ी बाहर का नज़ारा कर रही थी, अचानक से 2 गाड़ियाँ हमारे घर के बाहर आके रुकी और जब वहाँ से लोग उतरे तो मैं ये देख के हैरान रह गई। वो बासिल की फैमिली थी जिसमें ज़ोई भी शामिल थी और इमरान भी और बासिल के अम्मी-अब्बू भी। उनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें थीं। वो सब लोग हमारे दरवाज़े पे खड़े थे। मैं उसी वक़्त नीचे भागी, अम्मी को ये सब बताया तो उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा खुलवाया। वो लोग अंदर आ गए। मैं तो अपने कमरे में छुप गई क्योंकि मुझे अपना हुलिया ठीक करना था। बासिल ने सरप्राइज़ दिया था। उससे पहले मुझे नहीं बताया कि वो आज आने वाला है, मगर वो कुछ दिनों से कह रहा था कि वो अपने अम्मी-अब्बू को लेके ज़रूर आएगा। थोड़ी देर के अंदर ही ज़ोई मेरे कमरे में आ गई। "अरे वाह! तुम तो यहाँ छुप के बैठी हो। हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम, आज मैं तुम्हारी दोस्त बन के नहीं बल्कि अपने देवर की भाभी बन के आई हूँ, उसके लिए लड़की देखने। और मुझे लग रहा है कि लड़की का नाक थोड़ा टेढ़ा है। ज़ोई ने शरारत से मेरा नाक छूते हुए कहा तो मैंने उसके सर पे हल्का सा थप्पड़ लगाया और जल्दी जल्दी बाल ठीक करने लगी। आधे घंटे के अंदर मैं तैयार होकर उसके साथ नीचे पहुंच गई थी। आज बासिल ने मुझे अपने हाथों से अंगूठी पहनाई। अब उसकी तरफ से 2 अंगूठियां मेरे पास आ चुकी थी। उसके अम्मी अब्बू कह रहे थे कि उन्हें शादी की जल्दी है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने 2-3 महीने का वक्त मांग लिया। अभी ये वक्त पर लगा के उड़ने लगा। वक़्त गुज़रता जा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी को पहिये लग गए हैं। मैं वो वक़्त नहीं भूल सकती थी जब उस गंदे लड़के ने मुझे अगवा किया। वो चीज़ मुझे आज तक नहीं भूली और साथ-साथ बासिल का वो अंदाज़ भी मुझे आज तक ना भूला। जब वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया और मेरी इज़्ज़त बचाई। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमारी मेहंदी का दिन था। मैं और बासिल एक साथ स्टेज पे बैठे थे। सबने सोचा था कि मेहंदी कंबाइन ही कर लेते हैं। बासिल बार-बार मुझे छेड़ रहा था, कह रहा था, मोहतरमा ये ना हो कि अभी तुम ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ सोफ़े पे क्यों बैठा हूँ। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठा हूँ, किसी ऐरी-गैरी के साथ नहीं। वो शरारत से मुस्कुराता हुआ मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इर्द-गिर्द बहुत से लोग थे। मैंने बस मुस्कुराने पे ही इक्तफ़ा किया। मेहंदी का फ़ंक्शन हमारे घर पे था, इसीलिए मेहंदी का फ़ंक्शन ख़त्म होने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। मैं बालकनी से बाहर का नज़ारा कर रही थी। मेरी दोस्तें कमरे के अंदर बैठी थीं। आज उन लोगों ने यहीं पे रहना था जिनमें ज़ोई शामिल नहीं थी, क्योंकि वो कह रही थी कि उसे अपने घर पे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि उसका घर भी तो शादी वाला था। हम दोनों देवरानियाँ बनने वाली थीं। सादिया भी बहुत खुश थी। उसका रिश्ता तो पहले ही उसके चचाज़ाद के साथ तय था, लेकिन अभी शादी का कोई पता नहीं था क्योंकि उसका मंगेतर अमेरिका में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था। सब लड़कियाँ मुझे छेड़ रही थी कि अब तो वहाँ से वापस आ जाओ, गाड़ियाँ चली गई हैं। मगर मैं अब भी वहीं खड़ी थी। मैं ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। और फिर वक़्त यूँ ही गुज़रता गया। अगले दिन रात 8 बजे मैंने खुद को अपने नए कमरे में पाया। मुझे यहाँ पे रुख़सत करके लाया गया था, वो बासिल का कमरा था, जिसे मेरी पसंद के मुताबिक सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया। हालाँकि हर किसी को सुर्ख़ गुलाब पसंद होते हैं, लेकिन बासिल ने मेरी पसंद को ना ठुकराया था। थोड़ी देर बाद वो खुद भी कमरे के अंदर आ गया। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी। उसने मेरा घूंघट उठाया और मेरी मुँह दिखाई दी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। वो मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। कह रहा था कि उस दिन जब तुमसे पहली मुलाकात हुई तो उसी वक़्त तुम पे दिल हार बैठा और समझ गया था कि मैंने एक मिर्ची को पसंद कर लिया है। जैसे ही उसने मेरे तीखे लहज़े को मिर्ची कहा तो मैंने उसके कंधे पे हल्का-सा थप्पड़ लगाया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मोज़ा हो गया है। मैं बासिल को अच्छे से जान गई थी। वो एक अच्छा लड़का था। बस उस रोज़ मुझसे बात बढ़ाने के लिए ही उसने मुझसे थोड़ी बहुत बदतमीज़ी कर ली थी। मगर अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई थीं और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं ज़ोई के घर में थी, यानी कि ज़ोई और मैंने अब एक साथ रहना था। हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल गई और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। पहले हम एक-एक चीज़ मोबाइल पे एक-दूसरे से पूछा करते, अब हम दोनों एक ही घर में थे। ये चीज़ मुझे अंदर से खुशी महसूस करवा रही थी और बासिल का वो बेबाक अंदाज़ तो मुझे इतना भा गया कि मैं भी उसी की तरह बेबाक होने लगी। और सच ही कहते हैं कि जो नसीब में होता है वो ही मिलता है। उस रोज़ जब सलीम ने मुझे अगवा किया तो मुझे लगा कि मेरे बाल मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और आज मुझे लग रहा था कि वाक़ई में मेरे बाल मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं। उन्होंने ही मुझे बासिल तक पहुँचाया, क्योंकि बासिल को मेरे साथ-साथ मेरे बाल भी बहुत पसंद आए थे।